Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. The topic to discussion today is how a client was saved. Lesson number 7, class ninth, subject English. Dear students, let's get to start with summary of the lesson. Here Gandhiji described an incident that related to one of his friends and co-workers named Rustumji. He was a large importer of goods from Bombay and Calcutta. Now Mumbai and Kolkata. Many a time he indulged in smuggling also. But he never talked of this to Gandhiji. The customs official never suspected him because he was on the best terms with them. But one day his guilt was found out. Now he was in big trouble. He was sure to be sent to jail. Rostamji came running to Gandhiji with tears in his eyes. He confessed that he had been smuggling but wanted Gandhiji to save him from being sent to jail. Gandhiji told Rostamji he would have to make a confession of his guilt to the government. He was not in favor of taking the case to court. He said, "It rests with the customs officer to prosecute you or to let you go, and he in turn will have to be guided by the Attorney General. I am prepared to meet both. I propose that you should offer to pay the penalty they fix. But if they do not, you must be prepared to go to jail. The deed shame he already been done. Imprisonment she should regard as a penance. The real penance lies in resolving never to smuggle again. Rustamji took all this quite well. He was a brave man. He felt himself entirely in Gandhiji's hands. Now Gandhiji met the customs officer and explaining to him the whole affair. He also promised to place all the books before him and told him how penitent Rustamji was feeling. The custom officer agreed not to take the case to court. Gandhiji was able to convince the Attorney General also, and at last the case was settled by compromise. Rustamji was asked to pay a penalty equal to twice the amount he had confessed to having smuggled. Rustamji wrote down the facts of the whole case, got the paper framed, and hung it up in his office to serve as a constant reminder to his heirs and fellow merchants. तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस समरी का हम उर्दू माना जान लेते हैं। यहाँ गांधी जी एक वाक़ा बयान करते हैं जो इनके दोस्तों में से एक दोस्त रुस्तम जी नाम के आदमी से तलक रखता है, जो उनके साथ काम किया करता था। वो बम्बई और कलकत्ता में बने माल का एक दरामदकार था। कई बार वो तस्करी काम भी करता था, लेकिन उसने गांधी जी से इस बारे में कभी बात नहीं की थी। कस्टम ऑफिसरों ने कभी इस पर शक नहीं किया था, क्योंकि उसके तल्लुकात गांधी जी से बहुत अच्छे थे। लेकिन एक दिन उसका गुनाह ज़ाहिर हो गया। अब वो एक बड़ी मुसीबत में था। ये पक्का था कि उसे जेल भेज दिया जाना था। रुस्तम जी अपने आंखों में आंसू लिए हुए गांधी जी के पास दौड़ता हुआ आया। उसने ये मान लिया कि वो तस्करी करता रहा था, लेकिन वो गांधी जी से चाहता था कि वो उसे जेल जाने से बचा लें। गांधी जी ने रुस्तम जी से कहा कि इसको अपना जुर्म हुकूमत के सामने कबूल करना होगा। उस मामले को कचहरी में ना ले जाने के हक में थे। उन्होंने कहा, ये बात कस्टम
पर दारोमदार रखती है कि वो तुम पर मुकदमा चलाएं या ना चलाएं, और उसे भी अटॉर्नी जनरल के हुक्म के मुताबिक चलना होगा। इन दोनों से मिलने के लिए तैयार हूँ। मेरा ये मशवरा है कि तुम इस जुर्माने को चुका दो जो तुम्हारे लिए तय कर लें, लेकिन अगर वो ऐसा ना करें तो तुम्हें जेल जाने के लिए तैयार रहना होगा। वो शर्मनाक काम तो पहले ही किया जा चुका है। कैद को तुम एक पछतावा समझना। सच्चा पछतावा तो ये होगा कि तुम पर कभी तस्करी न करने का पक्का इरादा कर लो। रुस्तम जी ने इन सब बातों को सही मानों में लिया। वो एक बहादुर इंसान था। उसने पूरी तरह से अपने आप को गांधी जी के हाथों में दे दिया। अब गांधी जी कस्टम ऑफिसर से मिले, उसे पूरा मामला समझाया। उन्होंने इसके सामने सारा हिसाब किताब रखने का वादा भी किया और उससे यह भी बताया कि रुस्तम जी आपने किए पर कितना पछताता रहा था। कस्टम ऑफिसर इस मामले को कचहरी में न ले जाने पर राजी हो गया। गांधी जी अटॉर्नी जनरल के सामने अटॉर्नी जनरल को मनाने में भी कामयाब हो गए और आखिर में ये मामले का निपटारा आपसी समझौते से हो गया। रुस्तम जी से कहा गया कि उसे कीमत 2 गुना के बराबर जुर्माने का भुगतान करे जितनी कीमत की तस्करी इसने कबूल की थी। रुस्तम जी ने पूरे मामले की सच्चाई को एक कागज पर लिखा और इस कागज को फ्रेम में जड़वा लिया। ये फ्रेम उसने अपने दफ्तर में लटका दिया ताकि ये उसकी आने वाली नस्ल और उसके साथी ताजरों के लिए हमेशा रहने वाली यादगार बना रहे। आज का हमारा टॉपिक इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज।